Jai Guruji, Jai Guruji, Shukrana Guruji, Namaste, Sat Sri Akal Guruji. A very beautiful evening to all the Sat Sangat ji and Shukrana for being here. So, Bhatia Aunty, do I start from here? Like I take on? Jai Sure, Guruji. Aunty. Jai Ji. Guruji, Aunty. Sure, Aunty. Ji. Thank you, multilingual Suresh Uncle, Bhatia Aunty, for yet again another blessed opportunity. This really means a lot. Thank you very, very much. Vayant Anantam Shukrana Guruji Maharaj, and thank you so much, multilingual, for this beautiful play of Banis. It really meant so much. The evening was so blissful, and cannot express my enough gratitude to Kamlesh Mehta Aunty. Aunty, thank you so much on behalf of entire Sangat for penning down this book so beautifully, which gives us such a close peep into Maharaj's journey with you and also understanding our Guru Sahib. We are indeed blessed. And as scheduled, I will today read this lovely chapter of Auntie's book for Maharaj, Flowers of Gratitude. The chapter goes about Guruji's childhood memories. This is so beautiful that I get to read this is entire satsang in itself. Well, I go ahead with chapter and then I as relevantly as I can. Guruji's childhood memories. I believe that whatever comes at a particular time is a blessing from God. I switch off the camera here and focus on the reading, Sangaji. I believe that whatever comes at a particular time is a blessing from God. Guruji was the divine avatar of Shiva. Those who spent time with him swear by certain events and happenings that made everyone believe that he has some supernatural power and was not a normal child. I will narrate some of the very interesting and miraculous events of his childhood in this writer. We could know about these happenings only when his mother came in and dropped by. We were sitting in Jalandhar at his darbar when suddenly everyone around us heard that Guruji Maharaj's mother had come to meet him. It was a delightful moment for all of us to know the mother of such a divine soul. We all sat around her, surrounding her to know the tales of Guruji's childhood. His mother told us multiple tales that made us believe that he was not a normal child and he never did any normal things that children would usually do in their childhood. In one incident, she told us that once Guruji Maharaj wanted to play with his friends when he was pretty young, but his friends refused to play because they had exams the next day. At the constant request of Guruji Maharaj, they agreed to play and stayed back with him. After the play, when they were going back, Guruji Maharaj told them to open their book and study certain topics. He told them that these topics would come in the exams. Children studied them, and to their surprise, all questions were the same. In another such incident, one day Guruji and his friends were playing the game of marbles. Everyone realized that wherever Guruji Maharaj used to say that the marble would go after the hit, it went there. He knew the things so closely. Once Guruji was appearing in his final exams in school. One of his friends' pen ink finished. Guruji Maharaj asked his friend to give him his pen. Guruji Maharaj filled this pen's ink without the ink pot. The teacher, invigilating, was watching it and noticed it. He also emptied both his pens and told
Guruji Maharaj to fill them up with ink. Guruji Maharaj instantly filled the pens, one with blue ink and another with red ink. The teacher was surprised to see that how he filled the pen ink without an ink pot. He was convinced there and then that he was not a normal child. In childhood, one of the Guruji's, Tayaji's son, was his teacher, and one day he told Guruji Maharaj to learn the spellings of sunflower and cauliflower, but he was too young and hence could not do that. That Tayaji's son gave him a tight slap on this incident. When he realized later, I'm sorry, when he realized later on that Guruji was a Mahapurush, he regretted it profoundly. One day, Guruji's friend came to Guruji Maharaj's house and said they wanted to eat halwa. They had seen great poverty, and Guruji Maharaj's mother said, there is nothing to eat halwa in the house. I'm really sorry for this. Guruji Maharaj said to his mother that she should burn the fire and place the vessel on the fire. He told her that she must keep stirring the vessel. Listening to his son, she kept stirring the empty vessel. All of a sudden, to everyone's surprise, the vessel was full of halwa. It was Sachkhand's prasad. Once, Guruji's middle brother bought a cow and brought it home. When Guruji Maharaj saw that he got when Guruji Maharaj saw that, he got annoyed and asked him to return the cow. He predicted that his brother had brought the cow for himself. The brother did not listen to him and said the cow would give the milk and the whole family will benefit from it. He did not listen to Guruji that day. A few days later, the same cow hit the brother with her horns in the stomach. All these incidents, time and again, proved that Guruji was never a normal child and he was a live Shiva incarnation. Nothing is hidden from Guruji. We were blessed to be living a life with such a divine soul and were really, really lucky to spend that valuable time of our life with Guruji. There's a blessing in everything that happens to us. So the chapter ends on a beautiful footnote, on the beautiful takeaway that there's a blessing in everything that happens to us. So beautifully put in, Kamlesh Aunty. And yes, regarding when I read this chapter, I read it in the morning also. My thoughts went to one very, very popular incident, especially these days. Our thoughts are a lot with Bapuji. My deep, deep reverence and obeisance to revered, respected Bapuji. And we, entire Sangat, are ever so grateful and shall live in gratitude always that revered late Bapuji and Mataji gave us this gift, Guruji in his human form. And Bapuji's incident again of Jalandhar Mandir is very popular, that Bapuji would never believe that his son was supernatural. He would always disregard Guruji's power, thinking that my son probably is acting. Till one day in Jalandhar Mandir, Guruji was meditating inside a locked room of his in Jalandhar Mandir. And after some time, when Bapuji was in the Darbar area, he saw Guruji coming inside, accompanied with a huge lion. Bapuji was so surprised to see Guruji, and that too with a lion. He narrated this
to other sevadars and other sangat present in the Jalandhar Mandir, only to get to know that Guruji was still inside the locked room meditating. So this is how Bapuji, father of our living God himself, who came to terms with the reality that his son Guruji Maharaj was God in human form. Not only this, Guruji's today, Bhatia Aunty only reminded me, thank you Bhatia Aunty, for taking my thoughts towards Shiv Uncle's satsangs. How Shiv Uncle says that uh, how since childhood, just the way we've read in this book, this chapter, similarly, Shiv Uncle has also narrated that how since childhood he came across many miraculous ways of Guruji Maharaj. One such was that they were riding bicycle about 16 kilometers. Both the friends used to ride the bicycle, and Shiv Uncle said that I used to get tired. And I would say since the wind would blow against the movement of the cycle. So he said, I got very tired. मैं बहुत थक गया. And I said, दोस्त, अब cycle तुम चलाओ. मेरे से और चलाई नहीं जा रही. He said, I went and sat on the rear seat while Guruji was riding the bicycle. And I was just surprised that जो हवा साइकिल के अगेंस्ट हमारे मुंह पे आके पड़ रही थी और साइकिल को मूव नहीं होने दे रही थी, वो सारी हवा साइकिल के पीछे चली गई और साइकिल को पुश देने लग गई. So he said, I used to be amazed. I knew कि मेरा जो फ्रेंड है ये ऑर्डिनरी नहीं है. He said, कभी वो खेतों में पढ़ाई कर रहे होते थे और करते करते किताबें पढ़ी हैं और वो डीप मेडिटेशन में चले जाते थे. और वन सच इंसिडेंट में he said, मैं उनको आवाजें मारता रहा कि वो कहाँ गुम है, और देखा कि एक किसान ने खेतों में पानी छोड़ दिया है और गुरुजी डीप डाउन उस पानी में ही बैठे हैं, उनकी किताबें तैर रही हैं. And he's oblivious to the fact that he's almost submerged in water. सो ऐसे कितने सारे शिव अंकल के सत्संग हैं जो गुरुजी के चाइल्डहुड पे बताते हैं, के बारे में बताते हैं, जैसे कि आंटी ने भी पेन डाउन किया हुआ. एंड इसके अलावा एक बहुत प्रोमिनेंट दैट यस, जैसे कमलेश आंटी ने कहा है दैट आवर गुरुजी is Shiva himself, Shiva incarnate. Yes, so he's shown this to Shiv Uncle so closely. शिव अंकल जब उनके साथ एक ही कॉट पे सोया करते थे, तो शिव अंकल कहते हैं कि मेरे को, मैं कई बार बहुत अनकंफर्टेबल होता था और मैं कहता था कि दोस्त तुम तो रात को सोते ही नहीं हो और मुझे कोने पे सोना पड़ता है और तुम बैठे होते हो पूरी पूरी रात, तुम क्या करते हो, तुम हो कौन. तो गुरुजी ने कहा आंखें बंद कर. तो शिव अंकल ने कहा आंखें क्या बंद करूं, इतना अंधेरा है कि 2 फुट की दूरी में तुम मुझे दिख नहीं रहे हो, तो आंखें क्या बंद करूं. गुरुजी स्टिल सेड कि आंखें बंद कर. सो शिव अंकल सेज कि मैंने आंखें बंद की एंड मैं देखता हूँ कि जहां गुरुजी बैठे हैं वहां रोशनी ही रोशनी है और साक्षात मैं शिव जी को वहां पे देखता हूँ. सो this says about Guruji's childhood and how around him people and everyone slowly, subtly got to know that Guruji wasn't a normal mortal human. He was an incarnate. And yes, यहाँ पे मैं अपना एक ऐड करूंगी. हम लोग गुरुजी की बड़ी कृपा है, बहुत उनकी ब्लेसिंग है हम पर कि हम जलंधर में रहते हैं और डुगरी के बहुत पास रहते हैं. जलंधर गुरुजी के जो घर है, हम उसको घर कहते हैं हमेशा मंदिर को, उसके बहुत पास रहते हैं. सो आई कैन सो रिलेट टू इट. इसमें जहाँ पे मेंशन किया है आंटी ने कि गुरुजी के वहां पे देखिए इतनी पावर्टी थी कि वहां हलवे के लिए गुरुजी ने सचखंड प्रोड्यूस किया. और आप आज देखिए अभी भी मैं पीछे ही बहुत रिसेंटली डुगरी में थी और कितने हजारों लोगों का लंगर इतना जेनरसली वहां पे बांटा जाता है और कितना पेट भर के गुरुजी खिलाते हैं. सो वो गुरुजी की सचखंड की पावर तो चली जा रही है, नीडलेस टू से, क्योंकि वो ह्यूमन या वो महापुरुष तो सिर्फ थे नहीं, वो तो लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ इन ह्यूमन फॉर्म थे. एंड ऐसा एक में छोटा सा सत्संग, छोटा तो नहीं है, बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे ये हलवा वाला पढ़ के लग रहा है कि महाराज ऐसे ही तो करते हैं. सो अभी मैं लास्ट संडे जब गई डुगरी तो रास्ते में बारिश होनी शुरू हो गई. सो गुरुजी से बातें करती जा रही थी एंड आई सेड गुरुजी आज बहुत मन है चाय पीने का और डुगरी और जलंधर में तो अब चाय बंद ही हो गई है, पर इतनी बारिश में आपके घर आ रही हूँ और चाय भी नहीं मिलेगी. एंड ऐसा कह के जैसे हम नॉर्मली गुरुजी से बात करते हैं करके मैं तो भूल भी गई.
और वहां पे बहुत ज्यादा रश था, बहुत ज्यादा वेटिंग थी एंड बहुत गर्मी थी और हम लोगों को काफी टाइम लगा दरबार तक पहुंचते। और जब हम माथा टेक के बाहर निकल रहे हैं तो लंगर के लिए बहुत लाइन थी। फिर हमने लंगर लिया और लंगर लेकर भी बाहर जूते घर तक जाने के लिए खूब लंबी लाइन थी और मैं अपना लंगर हाथ में पकड़ के लाइन में चलती जा रही हूँ। एंड आउट ऑफ नो वेयर एक सरदार जी अबाउट मिडिल एज और उनके साथ एक लड़का है। और वो सरदार जी जो वो स्टील का एक इतना बहुत ऊंचा भी नहीं, करीब आई मीन जिसमें शायद 50 कप चाय आती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती, वो लेकर और साथ में इतने छोटे ग्लासेस देकर खड़े हैं। और ना उन्होंने, मैंने उनको किसी को आगे कहते देखा ना पीछे। और वो मुझे कहते हैं आंटी चाय प्रसाद चाहिए। एंड आई एम लाइक दिस, आई सेड हाउ इज दिस पॉसिबल, यहाँ पे कहीं चाय नहीं है और यहाँ पे दरबार बिल्कुल गुरुजी के मंदिर के बाहर मुझे एक ऐसे आदमी कह रहा है। मैंने कहा अंकल आई, मैं कहीं नहीं, कुछ नहीं मुझे सूझा और मैंने सडनली कहा, आई सेड अंकल ये तो मैंने गुरुजी को सुबह कहा था। एंड दैट अंकल सेज मुझे भी तो सुबह ही ख्याल आया था। एंड आई टेक टी, आई जस्ट आई मीन बिल्कुल मैं उसको जैसे एक उसमें पी गई एंड मैं आगे आ गई। और वापसी में संगत जी मेरे को एक्चुअली थॉट था कि जैसे हम सचखंड का प्रसाद भी सोचते हैं गुरुजी प्रोड्यूस करते थे। एंड हम शिव पुराण में भी हमने कितना ये सुना है, जब मैंने सीनियर संगत से भी सुना है कि किस शिव पुराण की एक्सप्लेनेशन में दैट जो लॉर्ड शिवा है वो आपकी विश को कई बार पूरी करवाने के लिए आपके आगे इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं और इस इल्यूजन में आपकी विश पूरी हो जाती है। सो मेरे लिए उस दिन वो चाय इतने हजारों की तादाद में मुझे वो चाय का कप मिलना, आई डोंट नो वो सचखंड गुरु जी ने भेजा, महाशिव ने वो टू सेटिस्फाई दैट अर्ज ऑफ माइंड टू फुलफिल दैट विश। सो ये है हमारे महाराज और उनका उनका वो प्रताप, हमारे शिवा जो कि लॉर्ड शिव इज बेसिकली एनर्जी। ये भी एक बहुत, इट गोज ऑन टू प्रूव दैट गुरु जी इज महाशिव, though we do not need any proof, because at the same time when millions of people are remembering Guruji, each one, for each one, Guruji manifests himself in one form or the other. यहाँ बैठे अगर मैंने उनसे चाय मांगी, मुझे चाय मिली, तो शायद मीलों दूर, ओशंस अपार्ट, किसी ने उस टाइम पे कोई साइन मांगा तो उसको बटरफ्लाई दिखी, या किसी को गुरुजी की अमृत वर्षा दिखी, या किसी को कोई दर्शन हो गए। ये सब इसीलिए है बिकॉज Guruji is energy. Guruji is Mahashiv, who is the divine light and divine energy, which can manifest itself into as much number as the Sangat is. जितनी संगत उतनी मल्टीप्लिकेशन। सो ये है हमारे महाराज का प्रताप और ये है मुझे थॉट्स आई है पढ़ते हुए एंड आई कुड रिलेट माय ओन सत्संग टू इट। सो शुक्राना 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 गुरुजी महाराज फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। कोई भूल चुक हुई हो, कोई न्यूनता या कोई अधिकता हो गई हो इस सत्संग में और इस नरेशन में तो मुझे माफ करिएगा गुरुजी महाराज। एंड कमलेश मेहता आंटी is amongst us and over to you, Bhatia aunty. I think Kamlesh aunty would share the pearls of satsang with us. Thank you very much for the patient hearing and everyone. Shukrana Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji, Kamlesh aunty. Jai Guruji, Bhatia aunty. I mean, Snigdha aunty or Ekta aunty. Jai Guruji, Kamlesh aunty. Sangat ji, am I audible? Can anyone just signal that out? I don't know if I'm able to reach to Kamlesh Mehta aunty. Yeah, all right, thank you, thank you, thank you. So I think yes, Bhatia aunty, you there? You going to speak?
So should I be continuing? I don't know what's the agenda of the satsang like, and Suresh uncle, I think because he's traveling, probably he's not present today. Jai Guruji, Snigdha auntie. All right, I think some Guruji Maharaj Agya. So I'll go on with sharing of some satsang. I think there's hand being raised. So everyone today. And Suresh Uncle is traveling. Is everyone. All right. So I think this is Maharaj Agya. Maharaj really wants me to. Okay. Okay. All right. I'll share satsang. Okay. Bhatia auntie says she's unable to unmute. So Bhatia auntie, I think you should tell because I'm not the host, you can tell Snigdha auntie or text Snigdha auntie or Ekta auntie. They are technically hosting. So if they can unmute you, till then I will share a sweet satsang. I'm wearing this bracelet. So yes, Sangatji, about this bracelet. Yesterday, I went to a satsang, and while I was getting ready, I was just decking up. We all love to dress up for satsangs now. So I asked Guruji, I don't have a very ornamental bracelet. So I'm surely going to, pick one from somewhere. And while I was sitting in the satsang, suddenly a lady sitting in my back pulls back my hand and makes me wear this one. It's a beautiful one. So Jai Guruji Maharaj, from the life-changing events to the impactful turns of our life, to healing our various diseases, and I don't know how many times he saves us from accidents, diseases, sicknesses, uh, problems and issues that we do not even know, that the problems do not even touch you. So to pampering us with langars and teas and these little gifts, Guruji is so benevolent, so benevolent. So you there, Bhati auntie? Still not unmuted? I think there is some technical glitch because no one is being unmuted except me, and there's something in the settings. Kamlesh Mehta auntie is also not, I think, it's not also not able to unmute. And it's so strange that all of us have about so many satsangs to share, and I'm just going blank. I am going blank. I don't know. Maharaj testing. I'll just look for my satsang.
Jai Guruji. Jai Guruji, Sangatji, if the voice is audible, please give me a raise hand. Great. Thank you so much, Geeta Paul aunty. Namaste Guruji. Jai Guruji. बहुत बहुत शुक्राना दाता. I am very sorry संगत जी, आज कुछ थोड़ा सा ग्लिच की वजह से कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी कि हम लोग अनम्यूट नहीं हो पा रहे थे. वो भी गुरुजी की ही मर्जी थी, कोई गुरुजी नहीं. कुछ अपना मजेदार आज हमारे साथ में करके दिखाना था. बहुत बहुत शुक्राना सबसे पहले तो सारी संगत का जुड़ने के लिए, शुक्राना मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पे आने के लिए और गुरुजी की प्यारी सी ब्लेसिंग्स लेने के लिए. आर्ची आंटी, इफ यू आर देयर, बहुत बहुत शुक्राना आर्ची आंटी आपका आने के लिए और इतनी प्यारी सी रीडिंग करने के लिए और गुरुजी के वो बहुत ही प्यारी मेमोरीज वाला जो चैप्टर, जो सत्संग चैप्टर जो कमलेश आंटी जी ने अपनी हम सबके दिल के करीब जो बुक है द फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसमें जो इतना प्यारा सत्संग का चैप्टर आंटी जी ने लिखा, गुरुजीज चाइल्डहुड मेमोरीज, जिसको सुनते सुनते आई एम 100% श्योर हम सब उसी दौर को महसूस करना शुरू कर देते हैं. गुरुजी खुद भी इतने प्यारे हैं, उनका बचपन प्यारा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता. हम सबका ही बचपन इतना प्यारा होता है और गुरुजी का प्यारा सा बचपन जिसके इतने प्यारे प्यारे सत्संग आची आंटी आपने सुनाए कि शिव अंकल ने जैसे हमें बताया था, हम सबको ये सब जब हम सुनते हैं दोबारा दोबारा कितना फ्रेश और कितना एक चेहरे पे मुस्कान, मन के अंदर शीतलता और कितना सारा गुरुजी के लिए प्यार दे जाती है ना. थैंक यू सो मच आरजी आंटी, आपने बहुत ही सुंदर उसको एक्सप्रेशंस दिया. और जैसा गुरुजी के सत्संग में हमने हमेशा से सुना है कि बचपन उन्हीं की तरह अनोखा और चमत्कारों से भरा हुआ, आई शुड से, जैसे अनिल कपूर अंकल कहते थे ना, उनकी अजीबोगरीब दुनिया, और गुरु जी के वैसे ही से कितने वो भगवान हमें प्रमाण देने के लिए Auntie, your voice is breaking, cracking. वो Auntie, you're not audible now. जय गुरु जी. Auntie, is it fine now, Achi auntie? No, auntie. No, auntie. It was in beach mein abhi total blank. I mean, we could not hear anything. I think totally. Now is it fine? Anji, Anji. थैंक यू सो मच. जय गुरु जी, जय गुरु जी. सॉरी संगत जी, आज कुछ अलग सा ही मौसम का तकाजा है शायद. और मैं ये बोल रही थी कि कैसे हम लोगों को गुरुजी ने अपने मेमोरीज का, इतनी चाइल्डहुड मेमोरीज, जैसे अभी शिव अंकल का हमने सुना, और एक गुरुजी का सत्संग था ना कि गुरुजी जब खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ में, जब खेत में गए थे तो उनके कुछ दोस्त जो थे शिव अंकल के साथ में, कि उन्होंने नहर में उसमें नहाने के लिए गुरुजी को बोला, तो गुरुजी नहीं आ रहे थे, बट उनको जैसे वो लोग लेकर के गए तो एक तरफ वो वहां पे पानी में ही उन्होंने ध्यान लगा लिया था अपना. तो कैसे गुरुजी के, गोरखनाथ मंदिर के बाहर आपको याद होगा पिछले दिनों एक I think somebody else is also on. Somebody's, I think, audio is on. Yeah, now I think it's fine.
सो कैसे इतना सुंदर बचपन हमारे गुरुजी का, हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी का, और इतना सुंदर उस चैप्टर की व्याख्या। तो ज्यादा मैं अभी नहीं बोलूंगी। कमलेश आंटी जी, इफ यू आर देयर प्लीज, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्लीज अनम्यूट कमलेश आंटी जी प्लीज। Anil Auntie, uncle, I please think Kamlesh unmute. auntie is not there now. She was there earlier. I think technical glitch ke karan maybe now she's. I cannot see she's her not by there. her Yeah, name. yeah, now she's By not there her in the name. list. We have a hand raised, so maybe of Neelam Dugal auntie. Maybe she wants to speak. Yeah, So as requested also, if any of the Sangat wants to, as this is the interactive session with the Agya of Guruji only. So if anybody wants to share any satsang or any related matter with the chapter of Guruji's childhood memories, we would request you to please raise your hands and we will unmute you. Jai Guruji. auntie, Neelam Dugal auntie's hand is raised. Yeah, Neelam auntie. Hello, Jai Guru ji. Sangaji, if anyone. Yeah, Jai Guruji auntie. Am I audible? Ji auntie. जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। आज का अभी आंटी ने थोड़ी देर पहले पूछा कि एम आई ऑडिबल, तो आवाज नहीं आ रही थी, तो अगर मैं ऑडिबल हूँ तो हैंड रेज करें। तो मैंने तो वो बताने के लिए हैंड रेज किया और गुरु जी ने शुक्राना करने के लिए बुलवा दी। Great, थैंक यू great auntie, great, very nice. That's so beautiful. थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज। अभी जैसे ये गुरु जी के बचपन का बता रहे थे, तो हम शिव अंकल का एक सत्संग सुनते हैं जो जिसमें वो बताते हैं कि गुरु जी और वो शिव अंकल एक बार किसी बस में जा रहे थे, बिना टिकट की यात्रा कर रहे थे। तो गुरु जी महाराज ने कहा कोई गल नहीं, तो बैठे रहे, कुछ नहीं होगा सानू, तो टीटी मतलब देख ही नहीं पाएगा हमको। तो बिल्कुल इससे ही मतलब रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ। कुछ 3-4 साल पहले गुरु जी ने मेरे को लाइफ बख्शी, तो वो वाला सत्संग फिर कभी नहीं। बात क्या हुआ, हमें डुगरी मंदिर बुलाया शुक्राना करने के लिए। तो उस दिन मैंने वहां जाती मेरी सिस्टर को बोला कि दीदी आज हमको मुझे ऐसा लग रहा है कि हम शुक्राना करने आए हैं और गुरुजी ना हमको गिफ्ट देंगे। गिफ्ट में ऐसा नहीं था कि लॉकेट मिलेगा या कुछ, लेकिन बस ये था कि कोई गिफ्ट मिलेगा। और संगत जी, जब हम वहां पे दरबार में बैठे तो हमको क्या गिफ्ट मिला, 2 घंटे दरबार हॉल में बैठने को मिला वहां पर, जो कि कभी नहीं होता। और उस दिन जैसे सेवादार जी बाकी लोग कह रहे थे जल्दी जल्दी मतलब चलिए आप थोड़ा आज्ञा लीजिए, तो एक शब्द जब पूरा हुआ तो हमें आज्ञा लेने के लिए नहीं कहा गया। जैसे दूसरा शब्द शुरू हुआ तो मेरे दिमाग में ये वाला जो सत्संग था गुरु जी का, कि गुरु जी ने अपने आप को और शिव अंकल को कैसे वैनिश कर दिया, कोई किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे वो। तो वो मेरे को एकदम सत्संग याद आया कि गुरु जी आज ना मैं और मेरी सिस्टर किसी को दिखे ही ना। और गुरुजी महाराज ने सच में ये किया संगत जी, कि 2 घंटे डुगरी मंदिर में जाके इतना बिजी होता है एवरी फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, तो 2 घंटे में बिठाया। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और कल इंडिपेंडेंस डे की आप सबको बहुत बहुत बधाई। और गुरुजी का जो इतना सुंदर मतलब हिंदुस्तान में गुरुजी ने जन्म लिया और सबसे मतलब अच्छा हमारा देश है, इसीलिए गुरुजी ने हमारे देश को चुना। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु Thank जी, you so जय much, auntie. Thank you so much, Jai Guruji. Shukrana, Shukrana Guruji. गुरु। So yes, auntie, regarding this illusion, this is so correct. कमांडर अंकल ने बहुत ब्यूटीफुली, आने वाले टाइम में हम कमांडर अंकल की बुक को भी करने वाले हैं। आई एम श्योर सुरेश अंकल के एजेंडा में है बहुत कुछ उस बुक को लेकर। सो आप देखिए कमांडर अंकल ये बात को बहुत अच्छे से, उनका अपना पर्सनल सत्संग भी है विजा विज वो शिव पुराण से, कि महाशिव भी एक पूरा इंसिडेंट वो नरेट करते हैं बड़ी ब्यूटीफुली, बहुत लंबा है, कि किस तरह से महाशिव जो है शिव जी, वो भी अपने भक्त के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करके, इमेजिनरी इल्यूजन, जिससे उस टाइम वो भक्त को ये फीलिंग हो रही होती है, वो भक्त की वो रियलिटी बन जाती है। सो यस, नीडलेस टू से महाराज इज महाशिव। आंटी ने जैसे कहा, यस आंटी दिखे नहीं होंगे सेवेदार को, ये होता है,
आप गुरुजी से बात करते हैं और गुरुजी आपको ये बहुत संगत का मैंने सुना है, खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि यस महाराज वो इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, आपको इनविजिबल कर देते हैं। उन आइस के सिंगला अंकल की डॉटर का, आरती आंटी का ये एग्जैक्टली, सत्संग बहुत हाँ, ब्यूटीफुल है एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली, अपनी शादी का कि देखिए पूरे दरबार में एक ब्राइड आए और किसी को नजर ही ना आए। आप किसी को देखिए, नजर, सो ये पावर ऑफ क्रिएटिंग एन इल्यूजन, power of making a human visible to a particular eye, invisible to all. This power only God Himself, Shiva Himself can have, and that is what our Guruji is. this is what adding to this only Archie aunty, I am able to remember जो गुरुजी मुझे अभी याद दिला रहे हैं कि गौरी आंटी ही बताते थे कि जब माता जी आते थे मंदिर में तो वो गुरुजी के लिए ही बताते थे कि कैसे गुरुजी का अनोखा सा बचपन था, इतनी यादों से भरा हुआ, इतना प्यार से भरा हुआ कि बिल्कुल एक डिफरेंट उनका बचपन था। ही वॉज रियली डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल किड्स एज दे यूज टू हैव देयर चाइल्डहुड, कि गुरुजी का बचपन बिल्कुल ही डिफरेंट था। और जब वो हुए थे तो तब कैसे वहां पर सांप भी आए थे कमरे के अंदर में, और कितनी प्यारी Light also, divine light also, yeah. एग्जैक्टली द डिवाइन लाइट, और कितना खुशबू से भरा हुआ हो जाता था कमरा कि जब गुरुजी के उनके इवन expressions में से आंटी खुशबू आती एग्जैक्टली, थी। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, उनके एक्सप्रेशन से भी कितनी फ्रेग्रेंसेस आती थी। मतलब एक कितने प्यार से भरे हुए हैं वो कि हम सबको समझाने के लिए, और हम सबको ही एक देखो ना, वो कहते हैं ना कि कलयुग आने वाला था तो उससे पहले हम सबको वो उस रास्ते पर लेकर के आने के लिए कि नाम से जुड़ जाओ, सिमरन से जुड़ जाओ, उसके लिए गुरुजी ने, महाराज ने एक मनुष्य का चोला लिया और लेकर के फिर हमें कितना प्रैक्टिकल चीजों से करके बताया, और कैसे उनके अपनी संगत जो जैसे शिव अंकल जैसे जो उनके बचपन के भी दोस्त थे, कि उनकी आंखों के भी आगे कैसे वो फिर एकदम माया का वो कर दिया ना पर्दा, कि ताकि वो भ्रमित भी नहीं हो और डरे भी नहीं और नाम से भी जुड़े रहें। और आज कितना हम वो सुन करके हमारे को मन में कितना गदगद उठता है ना, कि कितना सुंदर लगा होगा उनको वो आंखें, अगर हम अभी 1 मिनट के लिए भी बंद भी करें तो कैसे, अगर हम इमेजिन करें कि हमारे सामने ही वो दृश्य हो रहा है कि अंधेरा है और सामने गुरुजी बैठे हैं ध्यान लगाए हुए भोले बाबा के रूप में, मतलब कितना ही सुंदर एंड आंखों के आंटी सामने। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि गुरुजी के जो जिगरी दोस्त बचपन के, जिनके साथ वो 16 साल तो मतलब एक कॉट पे सोए हैं, कॉट भी बेड नहीं, जो वो मंजी होती है, कॉट, कॉट पे जो पंजाब की हाँ मंजियां जी, होती है उस पे मंजी सोए पे, हाँ हैं, जी, हाँ उनका जी, नाम शिव। ये कोइंसिडेंस एग्जैक्टली, तो नहीं है मतलब कि वो दोस्त का सच अ नाम थिंग, शिव। नो, एग्जैक्टली, और जी, मतलब कितनी उनकी बातें सुनो गुरुजी की तो वो कितनी अनोखी, कितनी मतलब पूरी की पूरी यस, हमारे को भर देती है ना पूरे रोम रोम में, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, वही जैसे हर बारी गुरुजी के लाते हैं, जैसे ग्लूकोज चढ़ता है बॉडी में तो असर दिखाता है, वही ग्लूकोज गुरुजी के नाम का। गुरुजी के जितने सत्संग करते रहो, वो टाइम की तो लिमिट लगती ही नहीं है कहीं पर भी, कि टाइम की वो बाउंडेशन एक होनी चाहिए कहीं पर भी। और आंटी आप एक कितनी ब्यूटीफुल बात देखिए गुरुजी की, उनकी उनकी बचपन की बात होती है तो बचपन मीन्स डुगरीपन। आंटी आप देखिए, मैं अंकल के बहुत क्लोज फ्रेंड है, गुरुजी के बहुत क्लोज फ्रेंड है ढिंसा अंकल, उनके साथ आई गॉट टू स्पेंड वन डे, ढिंसा अंकल और आंटी के साथ। एंड आप देखिए, और एक गुरुजी के और फ्रेंड है बलबीर सिंह अंकल, बिल्कुल हम्म, गुरुजी का जो घर है मैं जहाँ पे वो बॉर्न हम्म, हुए हैं हम्म, उसके पीछे गली में ही रहते हैं। बलबीर सिंह अंकल को गुरुजी कह के गए हैं तुमने अपना सत्संग कभी नहीं सुना था। नाउ बलबीर सिंह अंकल हैज इन मतलब 100 thousands ऑफ इंडियन इंसिडेंट्स टू नरेट, बट उनको गुरुजी कह के गए, आप देखिए। और एक बात जो मैंने देखी, गुरुजी डुगरी के जो उनके भक्त हैं, उन्होंने हम सबको, आप देखिए वो जलंधर रहे, वो चंडीगढ़ रहे, वो दिल्ली रहे, सबको उन्होंने शिव पुराण करने को कहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ने को कहा, कितना कुछ ऐसा कहा। लेकिन जो डुगरी के उनके लोग हैं, वो इतनी ब्लेस्ड जगह गुरुजी ने चुनी कि वहां पे उन लोगों को गुरुजी ने ऐसा कुछ करने को नहीं कहा, क्योंकि वहां बर्थ लेके ही उनके वो पता नहीं कितने जन्म गुरुजी ने सवार दिए। एंड इसका एग्जाम्पल आंटी मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने एक बार पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि आई डोंट नो डुगरी की मिट्टी और डुगरी के लोग ऐसे हैं तो गुरुजी ने वहां जन्म लिया, या गुरुजी ने जन्म से हैं। आंटी कोविड के बाद जब पहली बार ओपन हुआ डुगरी मंदिर, वहां पे प्री कोविड जहां 1000 2000
3,000, 4,000, 5,000 लोग आते होंगे। उस दिन पहले संडे वहां पे 35,000 लोग आ गए। एंड डुगरी इज नॉट लाइक बड़े मंदिर, है ना, जिन्होंने देखा होगा, डुगरी तो गांव में है, अप्रोच तो गलियों की है ना, प्यारी सी पिंड की गलियां हैं आंटी। और वहां पे इतनी बसेस दिल्ली चंडीगढ़ की आई हुई थी, और 35,000 तो बाय द काउंट था, जो कि वहां की एडमिनिस्ट्रेशन ने बाय द काउंट किया था। उसके अलावा भी ऊपर से सत्संग आई जा रही थी, और टोटली पूरा जो पुलिस गवर्निंग बॉडीज है सब वहां पे आ गई थी मैनेज करने के लिए संगत को। उन्होंने तो क्या मैनेज करना था आंटी, डुगरी के जितने घर, जिसे हम कहेंगे गुरुजी के पड़ोसी, सारी गलियों के लोगों ने अपने गेट खोल दिए थे। और घरों के अंदर आंटी ऐसे हो रहा था, कोई किचन से लिम्कास खोली जा रहा है संगत के लिए, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट। दिस वाज सितंबर लास्ट ईयर, प्रिसाइजली अराउंड 5th सितंबर लास्ट ईयर। एंड उन्होंने, कोई अगर बच्चे हैं तो उनके लिए चिप्स, वेफर्स, मतलब एक जो महाराज का लंगर सो लंगर है। उस दिन क्या हो रहा था कि इतनी दुनिया आ गई थी कि वो लंगर तक पहुंच नहीं पा रही थी, जहां पे लंगर डिस्ट्रीब्यूशन थी वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन गुरुजी तो कभी अपने वहां से किसी को दे ही नहीं सकते, तो उनके जो पड़ोसी, उन्होंने अपने गेट्स खोल दिए, अंदर संगत आके बैठ गई, किसी के साथ बच्चे, कोई वॉशरूम यूज कर रहा है, उनको पानी, लस्सी, उनको कोल्ड ड्रिंक्स, उनको चिप्स, बिस्किट्स, ये सर्व हो रहे थे। सो वो एक जो मैंने नजारा देखा, उस नजारे को देख के समझ आया कि क्या है डुगरी, किसे कहते हैं कि जो भगवान का जन्म स्थल हो सकता है, वही ऐसा हो सकता है। सो दैट इज अगेन, मुझे अभी गुरुजी ने थॉट दिया, ये एक एक्सपीरियंस शेयर करने का। जी आंटी, जी भाटिया आंटी, over to you. Exactly. Anyone in the Sangat, please, I would request Komal auntie. Komal aunty. I would request the host to please unmute her. Jai Guruji, Correct. Komal auntie. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी आरती आंटी। जय बहुत 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 सुंदर चैप्टर था, और आपने इतना अच्छा उसको ब्यूटीफुली रब किया ना। It was amazing, amazing, amazing. I wish I have a hard copy of Kamlesh Auntie's book. I would love to read it, but the way you presented, it was so nice, so beautiful. And आप लोगों की बातें, मैं गुरु जी की बचपन के दोस्त, and I was just, it's just amazing. I want just this to never stop. बट एक सत्संग में जरूर अभी शेयर करूंगी आंटी। आंटी जब आपने अभी हाथ रेस किया ना, उनका कितना सुंदर ब्रेसलेट पहना हुआ आंटी ने। इसलिए जी मेरा आंटी। मन अंदर से कर रहा था कि रेज हैंड एंड डू योर सत्संग एंड डू गुरुजी का शुक्राना। Yes, it is. And auntie, I wear glasses. At that time, I was not wearing a glasses. And I saw your bracelet and I said, auntie ने कितना सुंदर bracelet पहना हुआ है। और ये डायरेक्टली गुरुजी ने आंटी गिफ्ट किया है। एक तो मैंने घर से गुरुजी से बात करते हुए, क्योंकि हम तो तैयार भी उन्हीं के लिए होते हैं, तो कहा गुरुजी कोई ऑर्नामेंटल सा नहीं है। एंड आंटी, अनदर थिंग, ये भी सत्संग है। मैं जब उस सत्संग में बैठी थी, सत्संग में भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे, और आई डोंट नो, जो शब्द चल रहा हो हमारे मुंह में वो होना चाहिए, उसके बजाय बार बार मेरे मुंह में एक लाइन आ रही थी, सब दे गहने बहुत होंगे, मेरा गहना तू मालका। एंड आई डोंट नो ये क्यों मुझे कहाँ से याद आया, एंड आई वाज हमिंग दिस। और इतने में मेरे पीछे, मैं नीचे जमीन में बैठी हूँ और मेरे पीछे आंटी बैठी हैं जो चेयर पे बैठी हैं, वो मेरा हाथ ऐसे पीछे करती हैं और मैं ऐसे देखती हूँ, और वो मुझे ये ब्रेसलेट पहना देती हैं। और जैसे ही सत्संग एंड होता है, वो कहती हैं आंटी आंटी रुकना रुकना, मैंने आपको कुछ देना है। और वो अंदर से आती है गुरुजी की इतनी ब्यूटीफुल पर्ल्स की माला, जिसमें इतना पेंडेंट है और उस पे गुरुजी लिखा हुआ है, वो मेरे गले में पहना जाती है। और मैं अपने आप को ऐसे देख रही हूँ कि गुरुजी आपने तो सच मुझे गहनों से लग दिया। सो सबने गहने बहुत होंगे, मेरे गहना तू मालका। एक्चुअली गुरुजी गोज ऑन टू प्रूव दिस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। गुरुजी की दुनिया वाकई अंकल जरूर ये बोलते थे, निराली है, बिल्कुल अजीबोगरीब दुनिया है। जो चीज आपको थॉट चल रही है वो कंप्लीट हो जाती है। द रीजन इज बिकॉज ही थिंक्स कि तुम वो डिजर्व करते हो। जो वो बार बार कहते हैं, मंगो नहीं मनो, जो मैं देना है मैं ही देना है। बट दीज थिंग्स ही बिलीव्स दैट ये तुमको अलाइव रखेगा, इट कीप यू गोइंग, एंड मेरा जो गुणगान है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अमेजिंग। कुछ ऐसा ही मेरे साथ कल हुआ। I will just narrate. I wanted to do it because this is relate to this
पर्ल की माला। आज कोई मेरा और आपका वो चल रहा है। आई जस्ट केम बैक फ्रॉम इंडिया, सो पर्ल की माला मुझे भी किसी ने दी, तो मैंने कहा चलो मैं ना ये आगे जजिस के यहाँ जा रही हूँ सत्संग पे, आई गिव इट टू हर। तो एज सून एज मैं अंदर गई तो आई वाज लुकिंग फॉर हर, शी वो आ गई, शी वॉक्ड इन, एंड मैंने उसके हाथ में बोला, मैंने कहा ये तेरा है, एंड शी टुक इट, एंड वो लेके हाथ में घूमती रही। और उस दिन उसने गुरुजी को बहुत सुंदर काली गुरुजी की गद्दी पर बहुत सुंदर सा प्यारा सा नेकलेस बनाया हुआ है। एंड टेल यू द ट्रुथ, मैं जब भी जाती हूँ मैं गुरुजी को कहती हूँ आज की दिखा रहे हो। So I just said yesterday also कि गुरुजी उनकी दिखा रहे हो। I talk to him Punjabi because Punjabi is my mother tongue, and is in a respect to my Maharaj. तो वो कह रही थोड़ी देर फिर घूम के आई मेरे पास, मुझे आके कहती है आंटी ये गुरुजी को पहना दूं। मैंने कहा ऑफ कोर्स ये तेरी चीज है, जो तेरे को करना है तू कर, एंड इट्स योर ना। और हैवी फ्रेश था, नया, कोई पहना नहीं। तो उसने जाके गुरुजी को वो वाला पर्ल का ही उसमें गुरुजी का पेंडेंट पहना दिया। अब आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं आंटी, मे बी समबडी कैन एक्सप्लेन टू मी। जो गुरुजी ने पहना हुआ था, थोड़ी देर वो पहना के बाहर आई, विद फ्यू सेकंड वो अपनी गद्दी से आधा नीचे गिर गया। इट वाज देयर, ये नहीं पूरा गिरा पर आधा गिरा। बट आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं। महाराज ने किसको दर्शन दिए, महाराज बस हैप्पी है, महाराज बस क्या कह रहे थे, पर अगेन वो कहते हैं अपना दिमाग ना लगाओ। एंड आई डोंट वांट टू थिंक ऑन दिस ओवर। जय गुरुजी, जो भी था Jai पर Guruji. संगत And वहां Auntie, बैठी थी। I'll add a small thing here. That जो Auntie, ये जो है ना, हम जब कहते हैं हमने ये सोचा, हमें ये मिल गया, हमने गुरुजी को ऐसे ही ये आंटी, गुरुजी वो माँ है जो बच्चा जब जिद करता है, रोता है, उसको बहलाने के लिए कैंडी टॉफी, ये तो वो है। लेकिन एक्चुअल में जो गुरुजी हमारे लिए कर रहे हैं ना आंटी, वो हमारी सोच के बाहर है। बिल्कुल जो मुसीबतें हमारे यहाँ तक होती हैं हमें पता भी नहीं, और गुरुजी जैसे वो यहाँ पहुंचते हैं और गुरुजी ऐसे ही ले जाते हैं। एंड देन गुरुजी इज कनेक्टिंग अस टू आवर हायर सेल्फ। एंड यस, एक दिन जो वो फाइनल डे हमारा आना है, उस दिन गुरुजी ने जो हाथ पकड़ के हमें ले जाना है लाइट की तरफ, हमें गुरुजी ने उस दिन के लिए जोड़ा है। और ये सब चीजें जो हमारे साथ होती हैं, बहुत मजा आता है, क्योंकि हम तो गुरुजी के वो नादान बच्चे हैं जो वो टॉफी कैंडी उनसे मांगते रहेंगे और वो भी देते रहेंगे हमें शांत करने के लिए। मैं हर बार ही Yes. कहती हूँ नहीं मांगना, पर फिर वो बोल देती हूँ, क्योंकि महाराज को कहती हूँ कभी तो अपनी प्रेजेंट दिखा दो, मैं किससे बातें कर रही हूँ, मुझे कभी तो जवाब दे दो। So I think I'm bad there. I shouldn't be doing that. That's wrong. But again, हम उनके बच्चे हैं, वो थॉट भी वही डालते हैं जो उन्होंने कल मेरे साथ हुआ, वो भी थॉट उन्होंने ही डाली। So amazing, amazing, amazing. जय Thank गुरुजी you. महाराज, Thank you so much, शुक्राना, Auntie. Thank you so much, शुक्राना Auntie. आंटी। जय Seema गुरुजी। Auntie, do you want to share in your Jai Guruji, Seema am I Auntie? audible? जी आंटी, जी जय आंटी, गुरुजी, जय सीमा आंटी, जय गुरुजी, Jai जय Guruji to everyone, सब संगत को। एंड आज बड़े ग्लिचेस हुए, इसके पीछे भी कोई गुरुजी की लीला होगी, बिकॉज एक बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया था तो उसमें 3-4 इंटरप्शंस हुई थी, बट दैट इज माय मोस्ट अमेजिंग सत्संग, क्योंकि जो मैंने बोला था गुरुजी ने साक्षात करके उस सत्संग का दिखाया था। सो मे बी his blessings in these glitches. अच्छा, अभी जो I normally always touch the quotes which Kamlesh Mehta auntie says, उसमें उन्होंने blessings के लिए बोला है, I believe that whatever comes at a particular time is a blessing from God, and there is blessing in everything that happens to us. So मेरे हिसाब से his coming in our lives is the biggest blessing for all of us. The intuitiveness, he was always there in our lives, not this life, many lives, but we did not know. And the master was always around us. And when we look back, I look back in my life and join the dots, I realize that his presence was always there. और वो हमें जन्मों से संभाल रहे हैं। वो एक कविता है ना, मुख जानते हैं जिस्म पर आत्मा अमर है, जिसके अंग सक प्रभ है तो किसका डर है। सो गुरुजी, यू आर विद अस, एंड आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा टाइम से मिलती हैं, दो वी ऑलवेज आस्क यू, बट ही हैज हिज टाइमिंग्स and he knows when he has to give, and his blessings are permanent and beyond. मतलब हलत और पलत, आगे के जन्मों की भी वो ब्लेसिंग चलती है, ना कि इस जन्म की। And another thing I've learned
कि कितनी ब्लेसिंग्स दे जाते हैं जिसका हमें पता भी नहीं चलता है. एंड सेकेंडली, और उनको भी ब्लेस कर जाते हैं जो उनसे जुड़े भी नहीं हुए हैं. एंड दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस. माय सिस्टर इन लॉ, I had just connected to him, and I took my sister-in-law, I think within 10 days of my connection, and he gave her a Sachkhand gift in Bade Mandir. He gave her a stone because she collects stones from all over, from her travels all over the world, and she's still not connected. आप देखिए गुरुजी की, और मैंने ये realize किया गुरुजी हमारी soul देखते हैं ना कि हमको. So probably he liked her soul and gave her Sachkhand. तो वो उनको भी bless कर रहे हैं जिनको वो नहीं जानते हैं. एंड अनदर सत्संग आई हर्ड गुरुजी का कि उन्होंने किसी से अपना सर दबाया था. उन्होंने कहा था आज मैं 62 लाख लोगों को ब्लेस करके आया हूँ. सो आप सोचिए दैट हाउ ब्लेस्ड वी आर दैट वी आर अंडर हिज शरण. एंड आंटी ने अभी गुरुबानी का बोला. आई थिंक वन ऑफ हिज फॉर्म्स ऑफ गिविंग ब्लेसिंग्स इज थ्रू गुरुबानी. वो कहते हैं ना कि गुरुबानी से हम कितना जुड़े हैं. और ये जो आज ये एक ऐसा ज्वेल है, रतन जवाहर है जो हमें गुरुजी ने सिखाया. और गुरुबानी से हमें सब क्वेश्चंस के अपने आंसर्स मिलते हैं जब हम गुरुबानी को सीखते और समझते हैं. So I'll in the end I'll say seek the kingdom of God and his righteousness. His blessings will flow. They will flow, keep flowing, and they will keep flowing. And blessed are we, जिसको गुरुजी हमको टेस्ट भी कर रहे हैं. He's testing us and he's giving a purpose to live life. And I always pray to गुरुजी कि गुरुजी आप अब इतनी लेट आपने इंट्यूटिवनेस दी है तो इतनी जिंदगी दीजिएगा कि हम आपको और थोड़ा सा समझ सके. ईश्वर को पूरा तो हम जान भी नहीं सकते. And another thing, he is Mahashiv, and he is Maharajaon ke Maharaja, and he is light, and which he is showing practically. And what is light? Light, who can materialize and dematerialize himself at any point of time and move with the velocity of light. और यही गुरुजी थे. For us, he was in a human form, but he was not human. He was even at that time light. It was a deception, वो उन्होंने एक ड्यूल लाइफ हमको दिखाई चोले ब्राइट पहन के, but he was light even at that time. और जो शायद उस संगत ने तब समझा नहीं जो हम लोगों को अब समझ आ रहा है, जब वो ना होते हुए भी हमको वही दिखा रहे हैं. और लाइट के दो प्रूफ होते हैं. एक दोज जिनके पैर धरती पे नहीं होते हैं, और दूसरा उनकी शैडो नहीं बनती. और ये हमने सब सत्संग में सुना है कि गुरुजी के पैर जमीन पे नहीं होते थे और उनकी शैडो नहीं होती थी. सो हाउ ब्लेस्ड वी आर. और गुरुजी का शुक्राना है कि उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हमें अपनी चरण शरण में लिया. और हमारी यही उनसे अरदास है कि हम आपके चरण शरण में रहें ताकि हमें नरक स्वर्ग सबका हमारा छूटे और हम आपके सिर्फ चरण शरण में बैठे. सो जय गुरुजी. सब संगत को गुरुजी का लाख लाख शुक्राना. Beautiful, auntie. Thank you. Beautiful. Thank you. As always, auntie, beautiful. आंटी गुरुजी ने संगत को उस टाइम भेद ही नहीं दिया पूरा. एक्चुअली वही इल्यूजन, अगर इल्यूजन नहीं क्रिएट करते तो क्या होता, कैसे होता, मतलब. एंड यस, आप देखिए उनका अपने भाई हरबंस सिंह जी की उसमें व्याख्या में बहुत ब्यूटीफुल है कि जो नानक थे, नानक अपनी माँ को भेद नहीं देते थे. उन्होंने अपने घर की दासी को भेद दे दिया था कि मैं निरंकार हूँ, लेकिन अपनी माँ को भेद नहीं दिया था. So this is what a divine light is. Yes, so right, auntie. And ये मुझे मेरी कही बात का और एक आंसर और एफर्मेशन आपसे मिल गया कि जो मुझे गुरुजी ने थॉट बहुत स्ट्रांगली दिया था कि कैसे ऐसे होता है कि यहाँ बैठी मैं कुछ मांग रही हूँ, वो भी गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं. कोई न्यूयॉर्क में बैठा है उसको भी दर्शन दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले को भी दे रहे हैं, दिल्ली वाले को भी दे रहे हैं. एवरी एक टाइम पे सबकी कैसे सुनते हैं, कहाँ कहाँ सुनते हैं. तो उसमें गुरुजी ने ही मुझे टेलीपैथिकली आंसर दिया था कि आई एम एनर्जी, आई एम लॉर्ड शिवा. लॉर्ड शिवा इज एन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी मैनिफेस्ट, जितने नंबर ऑफ डिवोटी हो उतना वो मैनिफेस्ट हो जाती है. आपने उसी के एक्सटेंशन में इतना ब्यूटीफुली आंटी बताया है कि लाइट, सो लाइट अपनी वेलोसिटी से, उसकी जो वेलोसिटी है वो measurable है ही नहीं है इस divine light की. So thank you so much, Seema aunty. It's always a privilege to listen to you and your version and your take on Guru Sahib. Thank you, Seema aunty. Jai Guruji.
Thank you so much, Seema aunty, Neelam Thank you aunty, very much. Thank you. आर्ची आंटी एंड कोमल आंटी और सब संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना सबका जुड़ने के लिए और गुरुजी के प्यारे से दरबार में बैठ करके आज फिर से हम सबकी एक प्यार भरी फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड की रीडिंग आज गुरुजी ने फिर से एक और चैप्टर हमें रीड करवाया और अपने पास एक कदम और बढ़ाया एंड यस इट इज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग बीइंग अटैच्ड टू गुरुजी। वो कहते हैं ना कि चाहे कोई जुड़ा हुआ है या नहीं भी जुड़ा है अभी सबका समय आना है और सबके सब हैं तो वही एक ही भगवान के दिए हुए किसी का रास्ता पहले तो किसी का बाद में मगर जाना सबने वहीं पर ही है और सब जब जुड़ेंगे तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी और जब वो सारे के सारे फ्लावर्स ऑफ ग्रेटिट्यूड गुरु जी के प्यारे से लोटस फीट में जब जाएंगे तो वो कितनी सुंदर माला बन जाएंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आज एक फिर से एक ब्यूटीफुल से संडे के लिए जिस संडे को हम सब पहले पार्टीज में और वीकेंड करके बिता देते थे वो तो सब कुछ वेस्टेज था और आज उसकी ट्रू रियलिटी उसकी ट्रू एसेंस पता चली है उस संडे की कि ये संडे कितना प्यारा है कि ये संडे हमें हमारे गुरुजी से कैसे मिला देता और गुरु परिवार से सबको रूबरू करा देता है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी और संगत जी अभी आप सबसे ये प्रार्थना कि हम सब जैसे जानते हैं कि बापूजी भी गुरुजी के पास उनकी लाइट में एक और ग्लिटर ऐड ऑन करने के लिए गए हैं तो हम सब एक बारी हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके नम्रता आंटी आई एम सो सॉरी अब मैं अनम्यूट नहीं करवा पाऊंगी प्लीज आई एम सो सॉरी नेक्स्ट टाइम वी विल बी डेफिनेटली लिसनिंग टू यू आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द होस्ट टू प्लीज प्ले द मंत्र जाप इन बापूजी's memory. All the sangat is requested to please join your hands and we all will be doing a collective mantra jap for Bapuji. Om. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी सदा सहाय।
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। Sangaji, you can unmute yourself and take Agya from Guruji. Jai Guruji. जय गुरु जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी। सबने बहुत अच्छा बोला, आपका अनंतम शुक्राना। सारी आंटी लोगों का बहुत बहुत संगत का शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज्ञा गुरु जी। अनंतम शुक्राना। सर्वगपला आज्ञा गुरुजी। आज्ञा गुरु जी। सबका जय भला गुरुजी, करिएगा। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा बहुत गुरुजी। अच्छा आज का सत्संग, उसके लिए अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना। सब पर अपना हाथ रखिए, सबके मेहर रखिए, सब संगत को, अपने गुरु परिवार को आपके अपने भक्ति में रमा के रखिए। जय गुरु जी। आज्ञा गुरु जी।